हेलो एवरीवन, मैं टी एस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन विच वी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में आपको जितना एक्सप्लेन किया था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स सी। देखिए बेटा, एनर्जी और एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए बेटा, व्हेन चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, व्हेन चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, then amount of work done due to charging is stored in form of energy. This energy is called potential energy of capacitor. Again, listen to me. When charging of a capacitor, then amount of work done due to charging is stored in form of energy. This energy is called potential energy of dipole. Okay. Let us consider a capacitor of capacitance C charged by charge small q, then potential difference across capacitor V. In this case, Q is equal to CV, V is equal to Q upon T. तो देखिए, अभी हमने क्या एक्सप्लेन किया। कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and capacitor charged by charge Q, then potential difference across the capacitor V. So Q is equal to CV. So V is equal to Q upon T. That's clear. अब देखिए बेटा, amount of work done, amount of work done due to charging by charge dq. So dw is equal to qv से dq into v. From equation first, v is equal to q upon c, dq q upon c. So dw is equal to q upon c into dq. When charging of capacitor from charge 0 to capital Q, then total amount of work done, or potential energy U is equal to integration of dw from 0 to capital Q. देखिए बेटा, again, when charging of capacitor by charge dq, then amount of work done dq into v. From equation first, v is equal to q upon c. When charging of capacitor from 0 to capital Q, then total amount of work done or potential energy. Now integrate dw from 0 to q. This work is stored in form of energy. It's called potential energy of capacitor. Okay. तो देखिए बेटा, q upon c into dq 0 to capital Q. dq represent the integration with respect to q. Then q, a small q, is a variable quantity. Another quantities are behave as a constant quantity. With respect to small q, 1 by c as a constant quantity, taking outside from integration sign. Okay, so u is equal to 1 upon c, 0 to capital Q, q into dq.
तो इसका इंटीग्रेशन देखिए बेटा, 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 टू कैपिटल क्यू. नाउ अप्लाई द लिमिट, apply the limit 1/2c upper limit minus lower limit. तो u is equal to q square upon 2c potential energy of capacitor. Equation number third. You know that q is equal to cv. So put in equation third. q is equal to cv whole square upon 2c c square v square upon 2c. So u is equal to half cv square. Equation number 4. That's clear. एक बार बच्चों इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए. अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए. अब देखिए बेटा, एफटीपी फाइनल टच पॉइंट्स. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U is equal to q square upon 2c. You know that series combination of capacitors charge remains same on each capacitors. So this result mostly 100% applicable नहीं है. अक्सर ये रिजल्ट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लगाया जाता है, बाकी फिर गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कंडीशंस चेंज हो जाता है. भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स पर चार्ज का वैल्यू सेम रहता है, तो ये रिजल्ट नॉर्मली सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लगाते हैं, लेकिन ये 100% एप्लीकेबल नहीं है. गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन भी चेंज हो जाती है. तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यू नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन सेम. तो ये रिजल्ट नॉर्मली पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं. पैरेलल combination, that's clear. Parallel combination, okay. अब देखिए बेटा, equivalent capacitance in series combination 1/c is equal to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3 up to 1/cn. तो एनर्जी के लिए हम बात करें q स्क्वायर अपॉन 2c. तो q स्क्वायर अपॉन 2 1/c का वैल्यू क्या पुट करें, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अप टू 1/cn. q स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लें भैया. तो q स्क्वायर अपॉन 2c1 q स्क्वायर अपॉन 2c2 q स्क्वायर अपॉन 2c3 अप टू q स्क्वायर अपॉन 2cn. तो u इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un. आप देख सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द algebraic sum of individual energies because energy is a scalar quantity. अब देखिए equivalent capacitance in parallel combination is equal to P1 plus P2 plus P3. तो देखिए नेट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर. तो सी का वैल्यू पुट करेंगे बेटा C1 प्लस C2
plus C3 up to Cn into V square. So U is equal to half C1 V square, half C2 V square, half C3 V square up to half Cn V square. So U is equal to U1 plus U2 plus U3 up to UN. क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज बिकॉज एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए भैया। एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा। अब देखिए बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब आप स्टडी करेंगे कि अगर बिटवीन टू कंडक्टर्स चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें एनर्जी लॉस क्या होगा। ओके, तो देखिए बेटा, कंसीडर टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स, टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स बिफोर connecting charge on conductors Q1 Q2, capacitance C1 C2, potential V1 V2। देखिए बेटा, consider two isolated spherical conductors before connecting of conductors charge, capacity and potential of conductors are Q1 C1 V1 and Q2 C2 V2 respectively। energy before connecting, energy before connecting U1, energy of first conductor half C1 V1 square, energy of second conductor half C2 V2 square। now both conductors are connected by thin conducting wire, okay। in this condition redistribution of charge between them। तो देखिए, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अब इन पर चार्ज क्या आ गया, Q1 डैश Q2 डैश, कैपेसिटी वही रहेगी। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, जब तक दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, बिकम्स एट सेम पोटेंशियल और कॉमन पोटेंशियल। नाउ both conductors are connected by thin conducting wire, then redistribution of charge between them and both conductors becomes at common potential। in this case charge on conductors Q1 dash Q2 dash by redistribution हुआ, तो चार्ज का redistribution होगा तो बिफोर कनेक्टिंग चार्ज क्या था, Q1 Q2। अब वैल्यू Q1 Q2 नहीं होगी, Q1 Q2 से इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, जो भी होगा हमें मालूम नहीं है। तो हमने सिंबल किससे डिनोट किया, Q1 डैश Q2 डैश। कैपेसिटी उतना ही रहेगी C1 C2, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल हमने V अज्यूम किया, तो कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखिए, एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग, एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग, एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग, एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग U2 हाफ C1 V स्क्वायर, V कॉमन पोटेंशियल, C2 V स्क्वायर, तो हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकंड से हम कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू पुट करेंगे, तो U इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 V, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। तो U इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। तो C1 प्लस C2 से ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भैया, तो आप देख सकते हैं U2 इक्वल टू हाफ
C1 V1 plus C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप देखिए, when both conductors are connected by thin conducting wire, then redistribution of charge between them till both conductors becomes same potential. In this case, some amount of flux leakage due to redistribution of charge. तो सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीकेज होगा ड्यू टू रिडिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू स्पार्किंग। तो फ्लक्स लीकेज होगा तो एनर्जी लॉस होगा। तो इन दिस केस U2 is less than U1 when both conductors are connected by thin conducting wire, then some amount of energy loss due to flux leakage. So U2 is less than U1। तो एनर्जी लॉस क्या होगा बेटा? डेल ऑफ U इक्वल टू U1 माइनस U2। U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो देखिए बेटा, हाफ तो आप कॉमन ले लीजिए, टेकिंग एलसीएम C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 प्लस C2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो C1 C2 V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस दिस टर्म का एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म बाय यूज ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। आउटसाइड नेगेटिव साइन है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे बेटा। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2। दैट्स क्लियर। तो देखिए C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो न्यूमरेटर में से थ्री टर्म C1 C2 कॉमन आएगा, तो डेल ऑफ U इक्वल टू हाफ C1 C2 कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ V1 V2। इक्वेशन नंबर 4। तो आप देख सकते हैं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ V1 V2, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो डेल ऑफ U इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन को हमने अप्रॉक्स नेगेटिव लिखा है बिकॉज हमें ये अननोन है कि V1 ग्रेटर देन V2 और V2 ग्रेटर देन V1, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर और V2 माइनस V1 होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 तो अब परफेक्टली क्या हो जाएगा भाई, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। इफ V1 इक्वल टू V2 देन एनर्जी लॉस क्या होगा बेटा? जीरो। अगर दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम है तो कंडक्टर के बिटवीन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं होगा, तो फ्लक्स लीकेज नहीं होगा, तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। तो एनर्जी लॉस क्या है? जीरो। भाई चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगर दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो फ्लक्स लीकेज नहीं होगा, तो एनर्जी लॉस भी क्या होगा? जीरो होगा। दैट्स क्लियर। ओके, एक बार इसको रिवाइज कर लें भैया।
अब देखिए बच्चों, EFI at a point, EFI at a point due to charged conductor, due to charged conductor. तो अब हम स्टडी करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। तो देखिए बेटा, कंसीडर अ कंडक्टर and given charge a small q is distributed on conductor. That's clear? That's clear? Okay. तो देखिए, a point A and B lies outside and inside the conductor. We are calculate the EFI. For EFI, imagine a cylinder whose surface is Gaussian surface. That's clear बेटा? अब आप देख सकते हैं at point A, EFI, E vector, area vector, dA vector, theta is equal to 0. Inside the conductor, total charge enclosed by conductor 0. भाई कंडक्टर के इनसाइड चार्ज क्या होता है? 0. इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है? चार्ज से। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया? 0. अगर कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है तो ई वेक्टर डी वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passage through the Gaussian surface, phi is equal to close integration E vector dot of dA vector as theta is equal to 0 according to Gauss's law. Phi is equal to summation q upon epsilon naught from equation first and second. E vector dot of dA vector summation q upon epsilon naught. That's clear? अगर देखिए if q is greater than 0, पॉजिटिव चार्ज है, डायग्राम में शो किया गया है, तो थीटा क्या होगा बेटा? 0 डिग्री। ये क्या हो गया? ई डी ए कॉस ऑफ 0 समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा की वैल्यू अब हम 0 पुट कर दें भैया, एंड समेशन क्यू इज इक्वल टू क्यू ई डी ए कॉस 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 तो क्या हो जाएगा आपका 1 ई डी ए समेशन क्यू समेशन क्यू की वैल्यू क्यू ले ली ना अपन ने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो गया? ए डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, अब इफ क्यू लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, तो इस कंडीशन में आपका डी ए वेक्टर तो यही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो थीटा क्या हुआ भैया? 180। अगर कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में आ जाएगा, एरिया वेक्टर इधर हो गया, एरिया वेक्टर नॉर्मली, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 180 डिग्री होगा। भाई दोनों पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना अपन। तो फिर ये क्या होगा? ई डी ए कॉस 180 समेशन क्यू का वैल्यू पुट कर दिया क्यू ई डी ए कॉस 180 माइनस 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए बेटा,
क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू ए माइनस ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 प्लस माइनस ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू प्लस माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए क्यू अपॉन ए चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी ई इक्वल टू क्या हो गया बेटा प्लस माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन वेक्टर फॉर्म एन कैप। दैट्स क्लियर। ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए भैया। ओके रिवाइज कर लो भैया इसको। अब देखिए बेटा इससे आगे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके थैंक यू।